Aditya from Ramjas College, University of Delhi. Uh, by taking the privilege of today's moderation, and also I'm very, very thankful to you all for being part of this educational journey with us. I'm also extending a heartfelt thanks on the behalf of the whole GSTS fraternity that you all have joined us today in this 184th GSTS session. Now, it is an initiative which provides platform to all young scholars around the nation for presenting their ideas, concepts, presentations, and any research work. From uncertain and recovering times of COVID to continuous Sunday evenings. Without skipping it so far, this platform provided a grandstand to 183 speakers till yet, and it is maintaining its continuous trajectory by hitting Sundays each week. The foundation of this initiative was very clear, and it was to provide a viable platform to scholars for presenting themselves freely among audience with their research work and sometimes their own authentic ideas. It sometimes, with many scholars, also acted in forking out that little thorn of stage fear. And in its journey, this initiative is blessed by many recognitions, like Doordarshan presented it twice under the program Jazba India Ka, and we have also chosen as change makers by G20 Changemaker Subnet, which was broadcasted live. This initiative also collaborated with many institutions and provided opportunity to even secondary and senior secondary students for their presentations. Now, since I have explained or I have given a small intro about this initiative, it's time to also introduce our team, a small team. So I'll start with a very determined professor, Dr. Manish Karmawar, who is founder and advisor of Graduate Scholars Talk Series and whose precise execution of the plans always bring something great of academic excellence. And of course, our moderators, Mr. Shubham Tiwari, Mr. Saurabh Singh, Mr. Ajay Gupta, Ms. Manvi Saraswat, Ms. Samriddhi Kanpal, Mr. Manthan, and I myself, Shailendra, who are working together and are getting part of this initiative, which eventually is exceeding our own scholarly knowledge and also research ideas. Now, proceeding further, now it's time to invite and to welcome our today's guest of honor for this 184th GSTS session, who warmly accepted our invitation and delivered her presence today. And for this, I would like to invite and I would like to welcome Miss Jyoti Gupta, ma'am. Ma'am, welcome to GSTS and thank you so much for joining us today. And before inviting you for your initial remarks, let me introduce you to today's audience. So, Ms. Jyoti Gupta, ma'am, is a doctoral scholar at the Department of African Studies, University of Delhi, focusing on the India Africa investment relations with a particular emphasis on foreign direct investment trends and prospects. She recently completed her Masters of Philosophy from the same department, and currently she is serving as a guest faculty member at the Department of Commerce, Deen Dayal Upadhyay College, University of Delhi. She secured All India Rank 1 in the Junior Research Fellowship, that is JRF, in 2020, and also qualified for the National eligibility test in both commerce and management. Previously, she has served as an academic associate at the Faculty of Management Studies, University of Delhi, and as a NET JRF tutor with the educational tech platform Unacademy. Her research has been presented and published in national and international conferences and journals. She is a life member of the Indian Commerce Association. With a deep commitment to advancing research and teaching, she continues to contribute to the academic community while pursuing new opportunities to further her expertise and impacts in the field. अगेन मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रेजुएट स्कॉलर्स टॉक सीरीज में और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्लेटफॉर्म को आज ज्वाइन किया है. Thank you so much for sharing this Sunday evening with us. And now I would like to request you to give us your
permission to start the event with some of your initial remarks. Please, ma'am. Thank you, Mr. Shailendra, for the introduction. So, first of all, I would like to take this opportunity to express my gratitude to Dr. Manish Kamwar sir for inviting me to this platform. I've been a part of this platform for almost an year now, and I've seen various students coming from diverse backgrounds, and they come together and share their thoughts and ideas on pressing issues. So I would like to congratulate the entire History Society, History Department, and GSTS team for the hard work they have put in, and they are keeping the talks going on without any failure, without any fault. And I also remember last Diwali, which was on Sunday. So at that time, I was new to this platform. So I thought that, okay, Sunday won't be like, we'll not be having a session. So, but to my utter surprise, Manish sir said, ki nahi, aisa kuch nahi hai. Even if it is Diwali or anything, we will have the session. So that is the hard work and the resilience which GSTS team has put in. So I congratulate the whole team for this. And often, sir says, starting something is not difficult, but continuing it is very difficult. मतलब आपके पास कोई आइडिया आता है तो यू गो ahead with it कि ठीक है कर लेते हैं. But when you get to know that you have to do it every Sunday or after every specific time period, then you realize that, oh, it is a task. I need to be consistent with it. So that is something which always inspires me to move forward in life. And coming to today's session. So today is the 184th session, and the topic is very relevant to all of us. And I also attended the last talk, which was given by Mr. Hardik Singh, and it was also on the similar topic. And he talked about the challenges and strategies surrounding the food insecurity in general. And he also presented case studies of India, US, and UK, and showed a comparison of how food insecurity is prevalent in these nations and how we can eliminate it, like what strategies can be taken up for the same. So I really commend him for the same. And today I'm equally excited and I'm eager to hear from Ms. Meenu Devika about her thoughts on the issue. And so with that said, let's just get started. Best wishes to you, Ms. Meenu. Thank you so much, ma'am, for your appreciations for this platform, and thank you so much. And we'll surely invite you after listening to Miss Meena. So now it's time to invite today's speaker, Miss Meena Devika. She's a graduate scholar at University of Delhi, and today she will be delivering her talk, which is certainly surrounds around food security, and the topic is वैश्विक खाद्य असुरक्षा युद्ध और जलवायु परिवर्तन के परिणाम. So, Miss Meena, now the stage is all yours. Please go ahead with your presentation. Okay, thank you very much, Shalinj. So, let me introduce myself. Hello, everyone. I am Meena Devika. And if I'm talking about my achievements, so I have done political science post graduation from Delhi University. And even I have done my BEd from Delhi University. And I am also UGC NET qualified. And I worked as a PGT political science in the different Kendriya Vidyalayas. So, with wholeheartedly, I would like to thanks entire GSTS team members and respected teachers and our guest of honors, Jyoti Gupta ma'am, and especially thanks to Manish Karamwar sir that provide me great opportunity, a great platform where I can enhance myself or even I can express my ocean of thoughts. So, if I'm talking about my topic, so my topic is global food insecurity, the alarming consequences, war, and climate change. So, now I would like to talk about my topic objectives. तो यहाँ पर अगर मैं अपने टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर बात करना चाहूंगी तो मैंने इस एरिया में फोकस किया है कि फूड सिक्योरिटी को लेकर जो जो फैक्टर्स है जैसे क्लाइमेट चेंज वॉर ये सारे फैक्टर्स तो मैटर करते ही हैं इसके अलावा माल न्यूट्रिशन आई मीन जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है और कुपोषण और वॉर है ये सारे फैक्टर्स भी मैटर करते हैं फूड इनसिक्योरिटी को लेकर देन इस टॉपिक के तहत मैंने इन सारे फैक्टर्स को एक दूसरे से इंटरसेक्ट किया है मेरे कहने का मतलब ये है
कि जो फूड सिक्योरिटी टॉपिक है ये अपने आप में एक सिंगल टॉपिक नहीं है, बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने साथ लेकर आता है। देन इसी टॉपिक में मैंने यहाँ पर इस एरिया में मैंने ये भी फोकस करने की कोशिश करी है कि जब भी ग्लोबल और नेशनल लेवल पर कोई भी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बनाई जाए, तो उसमें सोसाइटी के जो सबसे मार्जिनलाइज सेक्शन है, यानी कि सबसे वीकर सेक्शन है, उनको ध्यान में रखकर बॉटम टू टॉप अप्रोच को इम्प्लीमेंट किया जाए। देन अपने इस ऑब्जेक्टिव में लास्ट में मैंने कुछ सजेशंस एंड सॉल्यूशंस पर फोकस किया है, जिसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक माइक्रो लेवल पर हम इंडिविजुअली लेवल पर फूड सिक्योरिटी को कैसे और ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, और मैक्रो लेवल पर मतलब कि ग्लोबली कलेक्टिवली हम क्या कर सकते हैं, यानी कि नेशनल लेवल पर सरकारें अपने दम पर क्या क्या इनिशियली स्टेप उठा सकती हैं। तो अगर यहाँ पर बात की जाए फूड सिक्योरिटी की, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WFP, तो ये एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया सेट करती है डेफिनेशन का, जिसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर ही फोकस किया जाता है। और ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इम्पोर्टेंट है। बट यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि मेरी ये जो पूरी प्रेजेंटेशन है ये क्वांटिटी पर फोकस्ड है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि साल 2021 में वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि पूरे ग्लोबली 83 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूखा सोने पर मजबूर हैं, जिनको सफिशिएंट खाना नहीं मिलता। और अगर बात करें लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में, तो वहाँ पर हालत इससे भी ज्यादा गंभीर है। जनरली वहां पर लोग कूड़े के ढेर से खाना लेने पर मजबूर हैं, या फिर वहां पर लोग मिट्टी की रोटियां खाते हैं। तो ऐसे में अगर सिर्फ मैं क्वालिटी पर फोकस करूं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो नाउ अगर यहाँ पर डेफिनेशन की बात की जाए, तो एज अकॉर्डिंग टू FAO और WHO, when all people at all time physically economic access to sufficient safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preference for an active and healthy life. It means कि without any discrimination, individual person इतना कैपेबल हो कि वो अपनी डेली की जो फूड रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, कैलोरीज रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल करने में कैपेबल है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी के अंडर में, जैसे कि अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, स्टेबिलिटी और यूटिलाइजेशन। अब यहाँ पर अगर फूड सिक्योरिटी को कंक्लूड करें, तो हम कह सकते हैं कि पर पर्सन इतना कैपेबल हो कि वो अपनी फूड जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन है और कैलोरीज इंटेक है, वो फुलफिल कर पाए। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारी जो रूरल लाइफ है या फिर अर्बन लाइफ है, या फिर जेंडर के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर हमारी फिजिकली वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट ओवरऑल एक फिक्स क्राइटेरिया है। मैन के लिए इट शुड बी 2000 to 3000, एंड वुमेन के लिए इट शुड बी 1600 to 2400, और एक्चुअली मिनिमम क्राइटेरिया शुड बी फॉर द बोथ जेंडर 1800। इसके अलावा, इन सब चीजों के अलावा भी फूड सिक्योरिटी में कुछ और मेजर फैक्टर्स हैं, जैसे कि किसी भी नेशन के लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी इतनी एटलीस्ट होनी चाहिए कि वो फूड इजीली अवेलेबल कर सके, इजीली अफोर्ड कर सके। देन मार्केट में फूड सप्लाई चेन इजीली अवेलेबल हो, और इसके अलावा साथ ही कि वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो, और राष्ट्र इतनी सक्षम हो कि वो अपने लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करने में कैपेबल हो। देन यहाँ पर अगर हम बात करें मेन इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंट फूड इनसिक्योरिटी टाइप है उनकी, तो इसको भी हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें परसिस्टेंट फूड इनसिक्योरिटी, तो इट मीन्स लॉन्ग टर्म लैक ऑफ द एक्सेस टू फूड सफिशिएंट। एंड सेकेंड कैटेगरी इज ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट मीन्स फूड इनसिक्योरिटी, इट मीन्स फॉर शॉर्ट टाइम, यूजुअली कॉज्ड बाय टेम्पररी इकोनॉमिक हार्डशिप, या फिर एक लंबे समय से जॉब का ना होना, अनएम्प्लॉय होना, तो ये भी एक इसका रीजन हो सकता है।
Then third category, low food security, obviously reduce quality, variety and desirability of the dietary. और जो सेकंड कैटेगरी है वो है एक्सेस लो फूड सिक्योरिटी। ओवरऑल अगर हम इस पूरे डिफरेंट टाइप ऑफ जो फूड इनसिक्योरिटी है इनको एग्जामाइन करें तो ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये ज्यादातर हम लीस्ट डेवलप कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में मेजर कर सकते हैं। इवन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट बताती है कि टॉप 10 मेजर ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि यमन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सूडान, साउथ सूडान, हेती, अफगानिस्तान, यमन, जहां पर भयंकर फूड इनसिक्योरिटी लोग फेस कर रहे हैं। यूएनईपी का मानना है कि तकरीबन 60% जो हंगेरियस पीपल हैं ओवरऑल वर्ल्ड में वो इन कंट्रीज में ही देखे जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमेशा से ही ये इशू उठता आ रहा है कि लाइक ग्रोइंग पॉपुलेशन में और फूड इनसिक्योरिटी में क्या हमेशा से ही इम्बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं थॉमस मॉल्थस, जिन्होंने अपना एक ऐसे लिखा था ऑन द पॉपुलेशन ग्रोइंग रेट पर। वो कहते हैं कि जो पॉपुलेशन होती है वो हमेशा एक्सपोनेंशियली वे से बढ़ती है, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6। वही जो फूड प्रोडक्शन होता है वो अर्थमेटिकली बढ़ता है, यानी कि 1 से 2, 2 से 2, सॉरी 2 से 3, 3 से 4। तो ऐसे में इनका मानना है एज अकॉर्डिंग टू थॉमस थ्योरी, उनका मानना है कि जो फूड डिस्पैरिटी होती है, आई मीन पॉपुलेशन ग्रो और फूड सिक्योरिटी के बीच में हमेशा से एक डिस्पैरिटी बनी रहती है, यानी कि समाज का एक वर्ग हमेशा से ही फूड से वंचित रहेगा। तो उस समय ये बहुत ही चर्चित थ्योरी थी और लोग इसको कंसीडर करते थे, बट ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये कोई प्रूवन कोई ऑथेंटिक थ्योरी नहीं है। तो इस थ्योरी में जरूरत है कुछ बदलाव की। अगर मैं आज के टाइम में आज के सिनेरियो में देखूं तो कुछ ऐसे मेजर फैक्टर हैं जो ऑब्वियसली फूड इनसिक्योरिटी को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर अगर ओवरऑल मैं बात करूं फैक्टर्स की, तो यहाँ पर मैंने अपने पूरे इस पेपर प्रेजेंटेशन में फोकस करने की कोशिश करी है कॉन्फ्लिक्ट वॉर एंड सिविल वॉर, ग्लोबल पॉवर्टी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल डिस्पैरिटी, एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज, एंडलेस ह्यूमन डिजायर एंड द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी ओके, तो कॉन्फ्लिक्ट वॉर एंड सिविल वॉर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट वॉर एंड सिविल वार अपने आप में एक बहुत ही चैलेंज इशू है। आए दिन हम इसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया में भी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ेस पढ़ते हैं। तो जितने भी चैलेंजेस हैं फूड सिक्योरिटी को लेकर, इसका सबसे बड़ा रीजन कॉन्फ्लिक्ट वॉर है। तो वॉर अपने आप में सिंगल नहीं आता, बल्कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करता है, जैसे कि डिस्ट्रप्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन लीडिंग टू फूड शॉर्टेज एक्सेट्रा। अब यहाँ पर मैं फोकस करना चाहूंगी साल 2022-23 में UNWFP की रिपोर्ट बताती है कि ओवरऑल रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यहाँ पर तकरीबन 30 करोड़ लोग से भी ज्यादा प्रभावित हैं। ऐसे ही गाजा और सूडान क्राइसिस की वजह से 28 करोड़ लोग फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं। इवन इस रिपोर्ट का कहना है कि 5 में से हर एक यूक्रेनियन फैमिली स्टारवेशन से प्रभावित है। वहीं इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ा है, फूड इनसिक्योरिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ा है। वहीं अगर हम बात कॉन्गो की करें तो कॉन्गो में लगभग 65 लाख लोग जिनको लाइफ सेविंग फूड की बहुत एक्सेस नीड है। यहाँ पर 45% जो बच्चे हैं वो मॉल नॉरिश्ड हैं, यानी कि जिनका फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। इसके अलावा अगर हेती की बात करें तो हेती में भी वॉर का अपना इम्पैक्ट देखा जा सकता है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन में से 50% पॉपुलेशन आर फेसिंग एक्यूट फूड हंगर क्राइसिस। देन वॉर का सबसे ज्यादा असर अगर हम देखें तो जो सोसाइटी के सबसे गरीब लोग हैं या फिर पुअर फार्मर्स हैं या फिर ट्रेडिशनल आर्टिशियंस हैं, उन पर ज्यादा पड़ता है। और आयरॉनिकली प्रेजेंट टाइम में फूड को एक वेपन की तरह भी यूज किया जा रहा है, जैसे कि
जो एनेमी कंट्रीज होती है उनके फूड स्टॉक को लूटना या फिर फॉर्म्स डिस्ट्रॉय कर देना या फूड सप्लाई चेन को रोकना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वॉर क्राइम है। और इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो हाल ही में सीरिया में एक लंबे टाइम से वहां पर सिविल वॉर चल रहा है। तो वहाँ की सिविल वॉर की वजह से वहाँ की जो वुमेन है वो फूड प्रोवाइड करने की कंडीशन पर आर्मी के थ्रू सेक्सुअली असॉल्ट किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू है वॉर को लेकर। अब यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं इंटरनेशनली बहुत सारी हम न्यूज़ेस ऐसे पढ़ते हैं वॉर को लेकर, लाइक द यूएन सेज मोर देन 1 in 4 people in Gaza is starving because of war. Both sides use starvations as tool in Yemen war, Russia war, etc. etc. तो ये जितनी भी न्यूज़ेस हैं इंटरनेशनली, ये इस तरफ इंडिकेट करती है कि आने वाले टाइम में जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो खतरे में है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट फैक्टर की बात करना चाहूंगी, जैसे कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज द सोशल डिस्पैरिटी। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 1960s के दशक में ECLA, इट मीन्स इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका, तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जहाँ पर कुछ ऐसे सोशलिस्ट और जो स्ट्रक्चरलिस्ट जैसे कि एंड्रे फ्रैंक, इम्यूनल वॉलेंस्टाइन, समीर अमीन कार्डोसो, तो इनका कहना है कि जो पूरी ग्लोबल व्यवस्था है, जो ग्लोबल सिस्टम है, ये एक सोशल डिस्पैरिटी पर बेस्ड है। यानी कि इन्होंने पूरे वर्ल्ड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एज यू कैन सी अ कोर कंट्रीज एंड द पेरिफेरीज कंट्रीज। कोर कंट्रीज जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं और यहाँ पर इकोनॉमिकल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। यही रीजन है कि यहाँ पर वेल्थी इकोनॉमिकल स्टेट्स हैं। वही पेरिफेरीज कंट्री में डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पर इकोनॉमिकल पॉलिटिकल क्राइसिस हमेशा से ही बनी रहती है, और इवन फूड सिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी, स्टारवेशन, पॉवर्टी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स इस पेरिफेरीज एरियाज में बनी रहती हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जितने भी वर्ल्ड लेवल पर लेबर है या फिर प्रोडक्शन है, सोर्सेज है, वो सारे एक जगह जाकर इकट्ठे हो जाते हैं कोर में, और इन कोर कंट्रीज को ही ये सारी सर्विसेज का बेनिफिट मिलता है। अब इसी को ही मैं कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी। नेक्स्ट फैक्टर इज मटेरियलिज्म एंड द फूड शॉर्टेज। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कोर कंट्रीज में एक्सेस फूड सर्विस होने की वजह से यहाँ पर जो लाइफ स्टाइल होता है वो ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट बताती है, एज अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये 3 मेजर कंट्रीज हैं जहां पर सबसे ज्यादा फूड वेस्ट किया जाता है, जिसमें चाइना 9.6 टन करोड़ फूड एनुअली वेस्ट किया जाता है, और पर पर्सन 76 to 79 kg फूड वेस्ट किया जाता है। वहीं अगर अमेरिका में देखें तो 1.93 करोड़ टन एनुअली फूड वेस्ट किया जाता है। वहीं 59 to 65 kg पर पर्सन अमेरिका में फूड वेस्ट किया जाता है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम 2019 की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में 2019 से लेकर उस समय पैंडेमिक का टाइम था, तो 2019 में यहाँ पर 65 लाख करोड़ खाना वेस्ट किया गया, जस्ट बिकॉज की जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स थे वो दिखने में बहुत अच्छे नहीं थे। तो ये भी एक बहुत सीरियस इशू है। देन इसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो ओवरऑल इंडिया में 6.87 करोड़ टन खाना वेस्ट हो जाता है, और वहीं अगर पर पर्सन देखें तो 55 kg एवरेज फूड वेस्ट होता है एनुअली। तो ओवरऑल 7.8 करोड़ खाना वेस्ट किया जाता है, यानी कि इंडिया में टोटल फूड प्रोडक्शन का 40% खाना वेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक साइड हमने देखा कि वर्ल्ड में जहाँ पर खाना कंट्रीज में वेस्ट होता है, वहां पर दूसरी सिचुएशन भी है। कुछ ऐसी कंट्रीज जैसे कि बुरुंडी का यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, जो वर्ल्ड की सबसे पुअरेस्ट कंट्री मानी जाती है, और यहाँ पर पॉपुलेशन क्रोनोलॉजिकली यहाँ पर एक फूड सिक्योरिटी को फेस कर रही है। तो इसको WFP रिपोर्ट ने
हाईली रेड जोन कंट्री डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ की 75% जो पॉपुलेशन है वो भयंकर गरीबी में जी रही है, और 56% जो चिल्ड्रन है बेसिकली यहाँ पर मॉल नॉरिश है। बुरुंडी एक इतना गरीब कंट्री है कि हालांकि इसको एक लार्जेस्ट वेजिटेरियन कंट्री में काउंट किया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि यहाँ पर जो मीट प्रोडक्शन है वो बहुत ना के बराबर है, इसलिए यहाँ पर लोग जो भी गला सड़ा मांस है उसको खाने के लिए मजबूर होते हैं। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि बुरुंडी एक ऐसा देश है जहाँ पर भयंकर खाद्य असुरक्षा का सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फेज है क्लाइमेट चेंज डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट, इस पर मैं डिस्कस करना चाहूंगी। तो क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हीट वेव्स है, ड्रॉट्स है, अर्थक्वेक है, या फिर एक्सट्रीम रेनफॉल एंड फ्लड है। साल 2021 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की रिपोर्ट बताती है कि 8 अफ्रीका के मेजर कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर भयंकर क्लाइमेट चेंज को लेकर क्राइसिस है, जैसे कि बुरुंडी है, सोमालिया, सूडान एंड साउथ सूडान, इथोपिया। ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 23.5 मिलियन लोग भूख से ग्रस्त हैं। क्लाइमेट चेंज अपने आप में सिर्फ पानी और फूड की ही कमी को पैदा नहीं करता, बल्कि डिस्प्लेसमेंट को भी बढ़ाता है। इसलिए इन कंट्रीज में रिफ्यूजीज प्रॉब्लम भी धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो ग्लोबल फूड सिस्टम की वजह से लगभग वन थर्ड ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एनर्जी के बाद मीथेन गैस का बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होना और बायोडाइवर्सिटी लॉस का होना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज की वजह से। साथ ही अभी प्रेजेंटली बीते कुछ सालों में एल नीनो वेदर पैटर्न क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर सूखा अकाल का भी एक बड़ा रीजन है, जिसकी वजह से मिलियन ऑफ पीपल पॉवर्टी की लाइन में धकेले जा रहे हैं। एक तरफ हम देखें तो तापमान और CO2 का बढ़ना कुछ फसलों के लिए बेनिफिट हो सकता है, बट राइजिंग टेम्परेचर ऑल्सो स्पीड अप इवोपरेट इवोपरेट सॉरी इवोपरेट ट्रांसपिरेशन फ्रॉम, यानी कि ये बहुत सारी फसलों के लिए जल वाष्प उत्सर्जन को भी बढ़ा सकता है, जिससे कि बहुत सारी फसलों के लिए पानी की कमी हो सकती है। इसके अलावा अ, हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि बीते कुछ सालों में टेम्परेचर में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, जैसे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ा है, जो कि आने वाले टाइमिंग में हमारे जो कुछ क्लाइमेट चेंज को लेकर गोल्स है उनको अचीव करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, और ये मनुष्य के लिए कोई अच्छा सिग्नल नहीं है। साथ ही अगर टेम्परेचर इसी तरह बढ़ता रहा, जैसे कि अगर ये टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक या इससे ऊपर जाता है, तो बहुत सारी ऐसी स्टेपल क्रॉप्स है जो कि फसलों को नुकसान कर सकती हैं, जिसमें से कि गेहूं, चावल जैसी फसलें इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि जो IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज सेकंड AR की रिपोर्ट का कहना है कि टोटल अरब लैंड का वन थर्ड लैंड डिस डिग्रेडेड हो चुका है, यानी कि वो किसी भी तरह से कृषि योग्य भूमि में अब उसको यूज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा रिपोर्ट ने ये भी सिग्नल दिया है कि 2050 तक आते आते ये पॉसिबिलिटी है कि राइस बेस की प्रोडक्शन में 20 से 30% की गिरावट देखी जा सकती है। साथ ही अगर बात करें कि साइंस ऑफ द टोटल इन्वायरमेंटल जनरल रिपोर्ट का कहना है कि अगर एनुअली 8% टेम्परेचर इंक्रीज होता है एनुअली, तो 2.160% फूड सिक्योरिटी रिड्यूस होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे फसलों में तो गिरावट आएगी ही, साथ में नेशंस की इकोनॉमी भी डाउन होती रहेगी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज और वॉर दोनों ही एक इंटरसेक्टिंग इशू है फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने में। Okay, in my end of discussion, I would like to suggest some solution and the suggestions.
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस चीज को फोकस करना चाहूंगी। फंडामेंटल राइट्स में जिस तरह से राइट टू फूड, राइट टू लाइफ के तहत राइट टू फूड हमारे एक फंडामेंटल राइट है, उसी तरह से सेव द फूड भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। इसको कॉन्स्टिट्यूशनली बढ़ावा मिलना चाहिए। देन इसके अलावा ये जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो 7 शेड्यूल है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में भी फूड सिक्योरिटी को लेकर प्रावधान बनाए जाने चाहिए। मीन्स कि स्टेट लेवल पर भी इस पर इंडिविजुअली काम किया जाए, स्टेट लेवल भी अपने तरीके से लॉज यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें, वहीं सेंट्रल लेवल पर भी कानून बनाए जाए। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से पार्टीज अपने राजनीतिक रूप से प्रचार प्रसार करती हैं, उसी तरह से ये जरूरी है कि भारत के सदर में लोगों के बीच में फूड सिक्योरिटी को लेकर अवेयरनेस फैलाई जाए। देन कॉन्स्टिट्यूशनली लेवल पर एक फूड प्रोटेक्शन एडवाइजरी कमेटी को भी स्टैब्लिश किया जाना चाहिए, ताकि इस इशू को लेकर वो हॉलिस्टिकली वर्क कर सके। अब यहाँ पर अगर मैं अदर कंट्रीज के एग्जांपल्स लूं, जैसे कि फिलीपींस में सबसे कम खाना वेस्ट होता है, ऐसे ही और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे कि फ्रांस है, साउथ कोरिया है, जो कि फूड वेस्टेज संबंधित लॉज बनाकर वहां पर इस चीज को बढ़ावा दे रही हैं। इवन इन कंट्रीज में कुछ नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं फूड सिक्योरिटी को लेकर, जैसे कि डॉगी बैग्स है, फैमिली बैग्स हैं। इससे जो रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने जाते हैं वो अपना लेफ्ट ओवर फूड सेव कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट हम इंडिया में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लस ग्लोबली ये जरूरी है कि सभी राष्ट्रों को, चाहे फिर वो डेवलपिंग कंट्रीज है या डेवलप कंट्रीज है, यहाँ पर काम करना ही होगा, कलेक्टिवली काम करना ही होगा, ग्लोबली कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर। जो डेवलप कंट्रीज है यहाँ पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है फूड सिक्योरिटी को लेकर, हालांकि डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को भी अपने लेवल पर इनिशियली यहाँ पर स्टेप उठाने ही पड़ेंगे। अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा जो फूड वेस्टेज है, हालांकि दोनों ही डेवलपिंग कंट्रीज में भी फूड वेस्ट होता है, डेवलप कंट्रीज में भी, लेकिन फूड वेस्टेज का जो तरीका है वो अलग है। डेवलप कंट्रीज में ज्यादातर फूड अनयूजुअली वेस्ट किया जाता है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में फूड वेस्टिंग का सबसे बड़ा रीजन है कि वहां पर संसाधनों की कमी है। इन देशों में जो फूड स्टॉक या फिर जो कोल्ड स्टोरेज है, उनकी सबसे ज्यादा कमी है। इकोनॉमिकली यहाँ पर प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो जरूरी है कि डेवलपिंग कंट्रीज को इस एरिया में काम करना ही होगा। अब अगर माइक्रो लेवल पर यहाँ देखा जाए तो द थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी। हिस्टोरिकली एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे, जिनका नाम एडम स्मिथ था। उन्होंने अपनी वेल्थ ऑफ नेशन में इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था। सिंपली अगर इस थ्योरी की बात करें तो वो कहते हैं कि इकोनॉमिकली जब हम खुद अपने आप को डेवलप करते हैं, तो साइड बाय साइड हम नेशन को भी डेवलप करते हैं। तो सोशली पर्सपेक्टिव से भी ये थ्योरी यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है कि अगर हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, तो धीरे धीरे सोसाइटी में पॉजिटिवली चेंज आ सकते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि हमारी जो फूड हैबिट्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि भारत जैसे देश में जो सबसे ज्यादा खाना वेस्ट होता है, साल 2024 में यूएनईपी की रिपोर्ट बताती है कि वैसे तो ओवरऑल वर्ल्ड में 60% खाना वेस्ट होता है, जितने घरों में और हमारे जो फंक्शंस होते हैं, शादी पार्टीज, इनमें सबसे ज्यादा खाना वेस्ट होता है। वहीं 28% खाना रेस्टोरेंट्स वगैरह में वेस्ट होता है और 16% खाना जो मार्केट सप्लाई होती है उसके तहत वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर भारत के सदर में मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि शादी और पार्टीज में जो खाना बर्बाद होता है उसको सेव करना बहुत जरूरी है। तो दैट्स ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन। लास्ट में अगर मैं इस प्रेजेंटेशन का कंक्लूजन करूं, ओवरऑल अपनी प्रेजेंटेशन को मैं अगर 2 लाइन में समराइज करूं, तो ऑब्वियसली हमें मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम प्रिंसिपल, इट मीन्स अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख जैसे प्रिंसिपल को लागू करना ही होगा, जिससे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 अचीव किया जा सके और सोशल जस्टिस को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा सके। थैंक यू।
Thank you so much, Miss Meena. Congratulations for such a wonderful depiction and indeed one of the well approached and explained talk. And the topic was absolutely connected because I mean all our audience must be connected with this topic because last talk was also based on food and security. But the two more factors which uh, was added in today's talk were war and climate change. So you justified your talk very well, and now we have some questions which are very interesting and very relevant to our audience. Okay, I think some network issue. Yeah, yeah. Sorry. Come on. Yeah, Yes, go ahead. yes. Give me a second, huh? I just because of some network issues, I just left the session. Let me just open the chat box once again. Okay, so it's time to ask some questions because our audience have asked some questions. So let's take them. So the first question is that जलवायु परिवर्तन that is climate change के प्रभाव से किस प्रकार की फसलें अधिक प्रभावित हो रही हैं और इसका वैश्विक खाद्य असुरक्षा पर क्या असर है क्लाइमेट चेंज कौन कौन सी ऐसी Actually, can you repeट this question? Because your voice is breaking. ओके now is it audible? Let me switch off my camera. Sir, voice break हो रही है. Now is it audible? And if it is not हाँ audible, जी, हाँ then जी. जी. ओके ओके सो द क्वेश्चन इज बेसिकली कि जो क्लाइमेट चेंज है उससे कौन कौन सी ऐसी मेजर क्रॉप्स हैं जो अफेक्ट हो रही हैं और इस पर्टिकुलर अफेक्ट का फूड इनसिक्योरिटी पर या फूड सिक्योरिटी पर क्या प्रभाव है क्या असर है इस पर्टिकुलर इफेक्ट का Yes, yes. Should Uh, I- yes, actually question clear नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा सा voice break हो रही थी. अरे nothing worry about it. Climate change and food insecurity. जलवायु परिवर्तन और खाद्य असुरक्षा में क्या संबंध है? जलवायु परिवर्तन और खाद्य असुरक्षा में क्या संबंध है? Yes. सी ऑब्वियसली जैसे मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी बताया था कि फूड इनसिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्लाइमेट चेंज है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बहुत सारी फसलों को लेकर वो हार्म कर सकता है, जैसे कि खासकर गेहूं, चावल और मेज कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि अधिक तापमान में उन अधिक तापमान की वजह से उनके ग्रोथ में असर हो सकता है। तो देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज और फूड इनसिक्योरिटी एक दूसरे से काफी कोरिलेट है। एक बहुत बड़ा रीजन है फूड इनसिक्योरिटी को लेकर क्लाइमेट चेंज। और इवन जैसे कि अभी यूएनईपी की जो रिपोर्ट आई है, 8 मेजर अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो कि क्लाइमेट चेंज से काफी हद तक सरवाइव कर रही है। और यही रीजन है कि वहां पर जो फूड प्रोडक्शन है या फिर वहां पर जो फार्मिंग है वो प्रभावित हो रही है। और इसका सबसे ज्यादा असर जो छोटे किसान हैं उन पर पड़ रहा है। तो ये गरीबी से भी, पॉवर्टी से भी काफी हद तक रिलेट है। Okay, okay, very well answered. I hope I'm audible. Let me know if like my Yes, voice is yes, audible. yes. Now you are audible. Yeah, you continue. Okay, okay. So very well answered. Now, last question I'm taking is that what sustainable agricultural practices can help in mitigating the effects of climate change and in improving global food security? Because somehow we have exploited some of our agricultural land and some of our traditional agricultural practices, which is somehow affected climate change, and climate change again affected global food security. So, what Hmm. are those sustainable agricultural practices which can help in mitigating the effects of climate change as well as to improve global food security? ओके, तो ऑब्वियसली वी नीड टू टेक अ इनिशियली स्टेप। सबसे पहले इंडिविजुअली हमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। लाइक हमें अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करना जरूरी है। जैसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था कि माइक्रो लेवल पर हमें काम करना ही होगा। जैसे कि खाना जितना हम बर्बाद करते हैं, अगर उसको हम कम से कम कर पाए
तो जितना ग्लोबली खाना बर्बाद किया जाता है, अगर वो 50% भी हम उसका बचा पाए, तो तकरीबन 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फूड अवेलेबल हो सकता है। तो छोटे-छोटे स्टेप यहाँ पर उठाना बहुत ज़रूरी है। देन अगर मैक्रो लेवल पे करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कलेक्टिवली काम करना। तो यहाँ पर ग्लोबली डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ को काम करना ही पड़ेगा। बट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हम अपने लेवल पर, इंडिविजुअली लेवल पर हमें इनिशियली कदम उठाने पड़ेंगे फूड सिक्योरिटी को लेकर। जहाँ तक मैं क्वेश्चन समझ पा रही हूँ। Okay, okay, okay. That was also well answered. Now I'm taking the last question, Meena. It was asked by Miss Megha, and the question is, does the Indian media, to some extent, has failed to cover the importance of food wastage and food insecurities to promote awareness? And if it is so, if so, then where, in your opinion, media is lacking? So basically, what is the role of media, and if it is मीडिया lacking, किसी भी सोसाइटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आईना होता है। तो मीडिया, हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट की रोल प्ले करता है। और यहाँ पर मीडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है लोगों को अवेयर करने में फूड सिक्योरिटी को लेकर। क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ, हमारे इंडियन पॉपुलेशन में फूड सिक्योरिटी को लेकर अवेयरनेस नहीं है। यहाँ तक कि लोग अगर खुद से भी इनिशियली आना चाहे फूड डोनेशन को लेकर या इनिशियली कुछ फाइनेंशियली हेल्प करना चाहे, तो वो इस चीज को लेकर अवेयर नहीं है। तो यहाँ पर मीडिया एक इम्पॉर्टेंट कॉर रोल प्ले कर सकती है भारत के लोगों के बीच में इस चीज को लेकर अवेयरनेस बढ़ाकर। यस। Okay, so thank you so much, Miss Megha. That was really a wonderful Q&A session, and you answered all the questions very well. Last question, usually we ask this question to all the speakers. What was your experience to this platform, and how has been your journey for the last week was with this platform, Miss Meena? सो जीएसटीएस के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और प्रेजेंटेशन के टाइम में एक डर भी था, जैसे कि ऑडियंस ने नोटिस भी किया होगा। बट मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। मैंने कोशिश करी कि मैं अपने लेवल पे अच्छे से अच्छे प्रेजेंट कर पाऊँ और ओवरऑल मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि पॉजिटिवली मेरा मानना ये है कि लाइक जब हम कुछ भी नया करते हैं तो ऑब्वियसली मतलब बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकली फियर से हम गुजरते हैं, जैसे कि लाइक अभी मेरे साथ हो रहा था। बट स्टिल मैं वहां पर मतलब सिचुएशन फेस करने की अपने लेवल पे मैंने कोशिश करी। तो ये जो कॉन्फिडेंट है ये जीएसटीएस टीम की वजह से मुझे आया है। और मैं मनीष करमवार सर को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी सर, कि एटलीस्ट आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू वेरी मच सर, मुझ पे बिलीव करने के लिए। ओवरऑल जीएसटीएस टीम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम जैसे यूथ अपने विचार रख सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा जीएसटीएस टीम को लेकर एंड थैंक्स वंस अगेन। Thank you so much, Miss Meena, and it was really a wonderful presentation. You did it really well, and once again, congratulations for your talk. Now, proceeding further, it's time to invite today's guest of honor, Miss Jyoti Gupta, ma'am, once again for her final remarks. So, ma'am, please kindly put your remarks, suggestions, and ideas on today's topic and to today's speaker and some of your ideas about this platform as well. Please, ma'am. Sure. Thank you so much, Charendra. Thanks again. So first of all, I would like to congratulate Ms. Meena for her well-researched and well-articulated session. And I really like that how she connected food insecurity with two aspects. First of all, war, and secondly, the climate change. And she really justified by putting all the strategies at various levels, that at international level, this should be done, at national level, this should be done, at state level, this should be done, and coming to individual level. Like we usually see people when they give their suggestions, they give suggestions about policy making and they think that that is it. Our role is done when we suggest something to the government, when we suggest that the government should do these steps, should take these steps and formulate such and such policies, and often fail to put forward what individually we can do. So I really like that about her presentation, that she gave individual strategies as well on how we can contribute, how we can help in resolving the issue.
So we see that in today's scenario, both the things are simultaneously going on across the world. We see wars as well as climate change. So understanding the implications for food security for both are critically important when we talk about today's era. And she started her presentation, she talked about that we should focus, usually we say that quality, we should focus on quality, and quality is always a better parameter than quantity. But when she started, she said that if I focus solely on the quality aspect, that would be very unfair and unjust to the people who are not getting meals like even once a day, जिनको एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, आप उसमें ये ढूंढो कि उनको न्यूट्रिशियस फूड कैसे मिलेगा. That is very unjust to those people. So that was a very wonderful point put forward by her, कि पहले ये तो इंश्योर करो ना कि उनको खाना मिल तो रहा है एटलीस्ट. जब मिलने लगेगा देन इंश्योर कि उनको न्यूट्रिशियस फूड भी मिले, कि उनकी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, बी इट विटामिन्स, कैल्शियम, बी इट मिनरल्स, बी इट प्रोटीन, every intake is being met with the help of different policies. But first ensure that quantity is being provided at least to them. Then she took examples of the wars ongoing or the previous wars as well, and put forward how food insecurity is being used as a tool for winning the wars, and how disadvantaged groups, especially the women and the least developing nations, or any disadvantaged group, is at a more farther risk of food insecurity than the developed nations, or maybe the other genders. So this is another important point which she put forward, and it was also very real. She gave the example of a recent war wherein women are getting exploited, and they are, on the basis of the exploitation, they are giving food to them, that the soldiers or the people who are basically the armies there, and they are exploiting women, and then they're giving food ki, okay, if you want food you need to do this kind of stuff, and then only we'll provide food. And food is a very basic necessity, you cannot survive without food. तो अगर फूड आप इस कंडीशन पे प्रोवाइड कर रहे हो और उसको आप वॉर जीतने का टूल बना के इस्तेमाल कर रहे हो, सो how low we all have, stoop low in the war situation and all these situations. So that is another important point which she had put forward. Adding to her presentation, she gave the example of FAO, and she also gave the example of World Food Program, WFP. So I'll just give a brief about these two things so that the presentation is a little more comprehensive. So starting with FAO, Food and Agriculture Organization. It is an initiative of UN, and it is a specialized agency that leads international efforts to defeat hunger. And their goal is to achieve food security for all, and to make sure that people have regular access to enough high quality food to lead a healthy life. And it has like 195 members currently. Coming to WFP, that is World Food Program. It is also an international organization, and actually this is one of largest humanitarian assistance organization, because they not only provide food assistance, but they also offer other kind of help, like technical help, development assistance, capacity building, any kind of requirements which are there in emergency situations. They provide and they prepare countries for the same. So that is what WFP is doing. And then, of course, we have SDGs in place, which ensure we are moving forward with the correct steps towards a good climate and zero hunger, zero poverty kind of steps. We already know about those. And another point which I liked about her presentation was, since I'm from African Studies Department, I understand that when usually we talk about Africa, we always see that, okay, it is a poverty-based nation, hunger-based nation, and many of the people are not willing to talk about it even. So I like that at least she had put forward it in her presentation that these are the indexes and this is the report, and the basis of this, these are the situations in those particular countries. So that was also like that on a personal level, I like that. And lastly, coming to the strategies, as she has already put forward, firstly, international collaborations, international agencies, they need to ensure these kind of food insecurity strategies are undertaken.
Then coming to country level, we need national strategies like she had put forward, that we can add it in our fundamental duties maybe, that we need to save food. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग डेली बेसिस पे कितना फूड वेस्ट कर रहे हैं, जो अभी उन्होंने इंडेक्स दिखाया दैट यूएसए, चाइना एंड इंडिया, all three of the countries, major countries who are wasting food on such a massive level. मतलब कितना बेसिक सी बात है कि हम खाना खाते आधा छोड़ देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, डस्टबिन में जा रहा है, एंड एट अदर एंड पीपल आर नॉट गेटिंग फूड टू ईट. मतलब वो तो इंडिया में तो वी कैन सी इट ऑन अ यूजुअली डेली बेसिस दैट वी सी पीपल स्टैंडिंग ऑन metro stations nearby and asking for food that I have not eaten since 2 days. Can you give me some money to buy the food? So these kind of things we should keep in our minds before wasting food. And we have celebrations all across the year. Yeah, तो big fat weddings का culture है, and then we have so many festivals. Abhi ganpati chal raha hai, then we'll have Diwali, then we'll have something else. So हर month we see, every month we have so many festivals, and in festivals में जो celebrations होते हैं, they should be sustainable. अगर हम इसको सस्टेनेबल नहीं बनाएंगे, अगर अपनी वेडिंग्स को, अपने सेलिब्रेशंस को, तो मैक्सिमम इंडिविजुअल लेवल पे आप उतना फूड वेस्ट मे भी ना भी करते हो घर पे, बट जब ये सेलिब्रेशंस होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा फूड वेस्टेज होता है. तो इसको हमें कंट्रोल करने की जरूरत है. एंड आई रेड अबाउट सम ऑर्गेनाइजेशन, सम एनजीओज हु आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ स्टफ, कि जो भी आपका सेलिब्रेशन हुआ, whenever it ended, you can call them up and you can tell them that we have this much food left over with us and we want to give it to the needy people. तो वो लोग आके आपके लोकेशन से कलेक्ट करके एक्चुअली उन लोगों को दे के आते हैं. सो दीज काइंड ऑफ एनजीओज जो हैं, दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, वी शुड बी अवेयर ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस. एंड ऑफ कोर्स मीडिया का जो भी पॉइंट रखा था किसी ने क्वेश्चन फॉर्म में, मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. मीडिया का रोल अगर यहाँ पे, अब इंडिया में तो मैक्सिमम वी आर फॉलोइंग आवर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वी आर फॉलोइंग आवर बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर्स एंड ऑल. सबके रोल मॉडल्स ही आज की डेट में वो हैं. और इधर इफ यू गो फॉर स्पोर्ट्स, वी हैव क्रिकेटर्स, कि हमें उनको देख के हम अपनी लाइफस्टाइल परस्यू करते हैं कि अच्छा उसके पास ऐसा है, उन्होंने ऐसा किया, दिस पर्सन इज एंडोर्सिंग दिस थिंग, सो वी शुड ऑल्सो डू दैट काइंड ऑफ थिंग. सो मीडिया कैन डेफिनेटली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, एंड इंडिविजुअल लेवल पे जो हम कर सकते हैं, हमें वो तो करना ही चाहिए. So that is it about the strategies which I think are important for catering to the food insecurity. And rest, many congratulations, Meena. That was a wonderful presentation. I really loved hearing from you. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much for your suggestions and remarks over today's topic. And once again, thanks a lot for joining us today. Thank you so much. Now, we also have a young scholar with us, Anubhuti Rajpreet. So, Preet, Rajpreet, if you could unmute yourself and share some ideas on today's topic, like regarding today's topic. Anubhuti, if you are here. Yeah, hi, good evening, everyone. Am I audible? Yes, yes, you are audible. Okay, hi, good evening. I'm a first year master's scholar at the Department of African Studies at the university. And today's session was really thought provoking for me because I'm definitely aware of all that's been happening, and I'm familiar with the topic food insecurity. But there were, as everyone else reiterated before, there were very, points that we are always aware of, like not wasting food. But at times, these small steps are, we tend to overlook and we tend to, waste food. It's a very like a minute little detail, but people generally forget these kinds of things when on a bigger scale this is effective, and leads to issues contributing to insecurity in the world related to food. So I mean, the talk was very interesting for me, so that's all.
Okay, so thank you so much, Ms. Anbhuti. And indeed, the talk was really good. And a request to everybody here that food is certainly a very basic necessity for all of us. And the least we could do to our side is that we should not waste food and to have whatever we could have, like the enough food which we could have. So this is a very basic principle and a very basic etiquette which we all should have. Okay, so proceeding further, it's time to invite our next speaker or to be speaker for next Sunday, Mr. Ranjan, and he will be speaking on the topic digital education. So, Mr. Ranjan, you could explain your objectives for the upcoming talk. हेलो, आवाज जा रही है? Yes, yes, you are audible, Ranjan. Go ahead. ओके, सभी को शुभ संध्या। मेरा नाम रंजन कुमार है और मैं वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल कॉलेज इवनिंग से बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस कॉम्बिनेशन के साथ स्नातक की पढ़ाई कर रहा हूँ। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है मेरा डिजिटल युग में शिक्षा को अपनाना, उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या अवसर हैं। तो मैं अपने टॉपिक के मुख्य उद्देश्य की बात करूं तो पहला कि डिजिटल, हेलो, Yes, Ranjan, go ahead. Ranjan, go ahead. We are listening to you. Okay, Saran, maybe. Yes, Ranjan, go ahead. हेलो। Go ahead. Okay, maybe some technical issues. ओके Yes, सर। yes, yes. Ranjan, go ahead. ओके। तो मेरा टॉपिक जो है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पहले के डिजिटल शिक्षा के लाभों का आकलन करना है, यह पता लगाना उस डिजिटल उपकरण और जो भी टेक्नोलॉजी सीखने की जो अनुभवों की पहुंच है उससे जुड़ना और जो व्यक्तिकरण को कैसे बढ़ावा देती है। दूसरा कि चुनौतियों का पहचान करना है, उसका समाधान करना। जो डिजिटल शिक्षा से जो भी जुड़ी बाधाएं जैसी तकनीकी असमानताएं होती है, डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएं और ऑनलाइन सीखने की गुणवत्ता का विश्लेषण करना। ऐसी एक और भी है कि तकनीकी उपकरण और प्लेटफॉर्म का मूल्यांकन करना कि शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं को समर्थन करने में जो विभिन्न डिजिटल उपकरण और प्लेटफॉर्म की जो प्रभावशीलता है उसका आकलन करना। और और नवीन शिक्षक जो है उसकी विधियों को खोज करना, जो शिक्षण और सीखने के नए नए उभरते तरीकों की जांच करना। जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हैं पारंपरिक दृष्टिकोण से भिन्न है। ऐसी एक और पॉइंट की नीति और जो प्रथाओं की सिफारिश करना है, प्रभावी नीतियां और जो प्रथाओं का प्रस्ताव करना। जो शिक्षा प्रणाली में डिजिटल प्रौद्योगिकी I को think एकीकरण का I समर्थन think कैसे करती है Ranjan, और हम आपको शायद ध्यान से नहीं परिणामों में सुन पा सुधार रहे कैसे कर हैं. सकता I है। तो think ये some हमारे problem. टॉपिक Okay, का Ranjan, no issues. Over to you, Salens. We'll fix your network next Sunday. So over to you, Salens, for the further proceedings. Thank you, Ranjan. We'll meet next Sunday. So I'll invite behalf of Ranjan for everyone for the next Sunday for the digital education. वो digital education के बारे में बात करेगा. So definitely we'll join next Sunday at 5 o'clock. So over to you, Salens. Okay, thank you, sir, and thank you so much, Ranjan. And we'll surely join you next week on where we will be speaking on digital education. Now, thank you so much, everybody. It's time to wrap up the today's session, another Sunday evening. So, thank you so much to all the teachers and to all the students who have joined us today. And for proposing vote of thanks, usually we invite Dr. Manish Karnwar, but today I would like to invite Miss Akriti ma'am. She is a faculty at Department of History, Shamlal College Evening. So, ma'am, kindly provide today's vote of thanks and kindly wrap up today's session. Thank you. Thank you, Shailendra.
So, for the vote of thanks, firstly, I would like to thank our principal sir of Shamlal Evening College, Professor Nachiketa sir, our convener IQAC, Pramod Dwivedi sir, and GSTS convener DN Jha sir. So, and also Meena, it was a really wonderful presentation, very interesting topic, and it was actually related to the last session also. So it was very insightful. And thank Thank you, you. Jyoti ma'am, for accepting our proposal and for your insightful comments for the presentations and for our GSTS platform as well. So thank you. And Manish sir, it's been because of you. So thank you, sir. Thank you so much. And on behalf of GSTS team, I would like to thank our audience. And I'll be, wanted to see you all in another session with Ranjan. And because our audience is very important for us. So stay tuned for the next insightful session. Thank you.